students to be renewed of our is then be able to take notes of the press and their contribution to develop, and students will be able to take notes from classes follow classes notes follow important and to develop historiography. Today we are going to learn about. Okay. So we're going to learn about the Lord five followers of classical thinkers who contributed to historiography. So the five thinkers are Voltaire, Leopold and Marx. You might have noticed नाम कौन सा रहा उनका नाम था पहले बोल रहे the thing is their names in the pronunciation that their country sounds written. So the names sound a little different students, or I think our was then in 1650. So it was French philosopher. He was in France, subject to study a lot. So it was a discussion on method. What now exactly a method? Right? This was a method. This was a method. Every historical document, जो भी डॉक्यूमेंट होते जो भी चीज होती है उसे हमें चेक करते हैं रिलेटेड या नहीं वो नहीं है and he also said that not under out exclude one in book की जब तक सच प्रूफ किया जाता सच मानवी नहीं है should not do हमें सच नहीं मानना चाहिए जब तक डाउन डाउट यानी सबके जो भी चीजें हैं जो शांत करने वाले लोग हैं जो करने वाले आइडियाज हैं उनको सच नहीं माना जाना right. So René Descartes was one of the first thinkers who spoke about how historiography should be written, on how historiography should be studied. All right. Moving on. Now we are talking about Voltaire. Voltaire was born in 1694 and he died in 1778. Voltaire was a French philosopher who used to criticize the church and the governments of his time. Now, Voltaire was such a thinker, a French philosopher. When we say the word philosopher, I forgot to mention it in the previous slide, but philosopher, the word means a great thinker, all right? So he used to criticize yani, he used to always talk about, may not necessarily in a good way, but sometimes in a bad way as well. You know how we give feedback, right? Positive feedback, negative feedback. So he used to give a lot of feedback to the church and governments of his time. All right. He is known for his book, The Essay of Customs. Essay yani the article on customs. Customs yani riti rivaj. दुनिया में जितने भी रीति रिवाज है, what are the actions taken by humans? He wrote a book on that. Now, what did he think about history and historiography? He felt that along with the chronology of historical events, social life,
trade, economy and agriculture were important in historiography. तो वोल्टेयर को क्या लगता था कि सिर्फ हिस्ट्री में पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, उस टाइमलाइन को या उस क्रोनोलॉजी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है. The other thing that's also important with that is social life. मतलब उस समय पे जिंदगी कैसे होती थी, ट्रेड उस समय पे लेन देन या बाइंग सेलिंग कैसे होता था, इकोनॉमी उस समय पे पैसे कैसे चलते थे या ट्रेडिंग कैसे होता था, एंड एग्रीकल्चर उस समय के फार्मर्स जो लोग थे जो खाना उगाते थे, जो दाने उगाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी. सो यू टू थिंक दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स. मतलब सिर्फ जो हुआ उसका टाइमिंग नहीं बताना है, पर उसके जिंदगी ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब करना है, किस किस जगहों पे उनका सोशल लाइफ, उनका इकोनॉमिक लाइफ, उनका एग्रीकल्चरल लाइफ एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स. ऑलराइट. He also is known as the father of modern historiography as he gave importance to the elements of human life. अभी क्योंकि उसने ह्यूमन लाइफ यानी ह्यूमन जिंदगी पे इतना इंपॉर्टेंस डाला, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. क्यों? क्योंकि आजकल भी व्हेन वी थिंक अबाउट हिस्ट्री, वी डोंट ओनली थिंक अबाउट अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ. नो, वी डोंट ओनली थिंक ऑफ अ क्रोनोलॉजी, वी ऑल्सो थिंक अबाउट ह्यूमन लाइफ की. फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें समझो आज के जमाने 2020 के हिस्ट्री को लिखना है, सो यू विल थिंक अबाउट ऑल द ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ मतलब कैसे बदल गया जब कोरोना वायरस आया, ह्यूमन लाइफ पहले कैसे थी, अभी कैसे है, कोरोना वायरस की वजह से ह्यूमन लाइफ में क्या क्या बदलाव लाने पड़े लोगों को. मतलब लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, मास्क पहनना पड़ा, उनको सैनिटाइजर का यूज करना पड़ा. सो वोल्टेयर थॉट दैट दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ कैन describe history. All right. And he felt that history should be written in that way. All right, moving on. So the third thinker we are studying about today is Georg Wilhelm Friedrich Hegel, who was born in 1770 and died in 1831. So we are going to call him Hegel for short. So Hegel was a German philosopher who is known for his book Science of Logic and Reason in History. All right. अभी तब जितने भी फिलोसोफर्स थे वो फ्रेंच यानी फ्रांस से थे, बट नाउ वी आर लुकिंग एट जर्मन फिलोसोफर्स यानी जर्मनी से एक फिलोसोफर है whose name is Hegel. Alright, his books were the Science of Logic and Reason in History. मतलब हिस्ट्री में वजह होनी चाहिए. Alright, या लॉजिक का साइंस क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है लॉजिक का, वो उसके बुक्स में उसने लिखा. So he thought that history should be presented in a logical and chronological manner. तो हेगल का क्या कहना था कि हिस्ट्री को कैसे होना चाहिए, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, उसको उसके सबूत होने चाहिए. ऑलराइट. एंड व्हाट वाज द सेकंड थिंग, ही सेड दैट इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, यानी टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए. ऑलराइट. सो लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल यानी सबूत के साथ, एंड क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के हिसाब से हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए. एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल इज, for example, let's say we want to know कि how did the Indians defeat the British. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं भगवान ने किया इसकी वजह से इंडिया ने ब्रिटिशर्स को हराया. नो, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि बहुत से लोगों को ब्रिटिश पसंद नहीं थे, तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, लड़ाई शुरू की. दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर उन्होंने प्रोटेस्ट कर करके, लड़ाई कर करके, इवेंचुअली दे सेक्योर्ड द कंट्रीज फ्रीडम. तो वो लॉजिकल है. हम लोग इसमें सबूत दिखा सकते हैं कि हाँ लोगों ने इस तरह से लड़ाई की, लोगों ने अपने ब्रिटिशर्स के कपड़े जला दिए, या लोगों ने मोर्चा निकाले, उसके अलग अलग फोटोज है हमारे पास. सो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक. ऑलराइट. ही ऑल्सो बिलीव दैट हिस्ट्री कुड चेंज ओवर टाइम एज एविडेंस वुड बी फाउंड. तो उसका ये भी मानना था कि हिस्ट्री जो है वो बदलते रहता है, इट कैन चेंज ओवर टाइम as evidence would be found. जैसे जैसे सबूत आते रहेंगे वैसे वैसे हिस्ट्री बदलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, लेट्स से हिस्ट्री में हमें पता है कि गांधी यूज टू गो ऑन अ फास्ट. गांधी जो है वो भूख हड़ताल पे चले जाते थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना था. तो ये हमें हिस्ट्री के बारे में पता है.
पर समझो आज सबूत निकला कि नहीं, गांधी ने लेकिन इस साल पे इस दिन पे भूख हड़ताल नहीं, उन्होंने मोर्चा निकाला था, तो हिस्ट्री क्या हो जाता है, अभी बदल जाता है। सबूत क्या है, मोर्चे का फोटो है मेरे पास, तो अभी सबूत बदलने की वजह से गांधी जी का क्या इंफॉर्मेशन हमें नया मिल रहा है कि नहीं, गांधी जी सिर्फ भूख हड़ताल नहीं करते थे, वो मोर्चा भी निकालते थे, राइट। सो दैट इज व्हाट हेगल सेड कि हिस्ट्री कैन चेंज ओवर टाइम, एंड दैट वाज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ हाउ हिस्ट्री कैन चेंज, ऑलराइट। नाउ final point, according to him, for humans to understand any historical event in one way, किसी भी इंसान को अगर कोई भी हिस्ट्री में हुई हुई चीज को समझना है एक तरह से, they must look at its opposite as well to know the truth. तो उन्हें उसका ऑपोजिट भी देखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, टू नो द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल समझो हमें देखना है कि हिस्ट्री में इंडिया का ब्रिटिशर से फ्रीडम पाना जरूरी क्यों है, हमें ये समझना है हिस्ट्री में। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया को ब्रिटिशर्स की जरूरत क्यों थी। सो टू थिंग्स यू हैव टू नोटिस हियर कि हेगल क्या मानते थे कि नॉट एनी वन आइडिया इज द ट्रूथ, कोई भी किसी का भी एक आइडिया ट्रूथ नहीं है। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस को हमारी जरूरत है, लेकिन इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिशर्स की जरूरत हमें नहीं है। तो दो अलग अलग आइडियाज है, वन इज अ थीसिस एंड वन इज अ एंटी थीसिस। तो ये दोनों ऑपोजिट आइडियाज के बारे में सोच के ही हम ट्रुथ पे यानी असली हिस्ट्री पे पहुंच सकते हैं, ऑलराइट। one more example to think of is we can easy example is some people think the earth is round, it's a sphere, we all know that, we all believe that, but there are some people in the world who also think कि the earth is flat, यानी वो चपटा है, वो राउंड नहीं है बल्कि एक चपाती बिल्कुल चपटा है। now for us to know the truth, हमें सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं अर्थ राउंड है, इतना इतना प्रूफ है, नहीं, हमें दूसरे का भी प्रूफ, दूसरे का भी थॉट सुनना चाहिए, हमें दूसरे के भी थॉट्स को पढ़ना चाहिए, और तब जाके हमारे और दूसरों के थॉट्स को पढ़ने के बाद हम असली सच पे पहुंच सकते हैं, ऑलराइट। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंकर, ऑलराइट, आवर नेक्स्ट थिंकर इज नोन एज लियोपोल्ड वैन रैंक। He was born in 1795, died in 1886. Leopold Van Rank was a German philosopher from the University of Berlin. So we are also learning about this new German philosopher. हम लोग फिर से एक और German philosopher के बारे में पढ़ रहे हैं, who was from the University of Berlin. Berlin यानी he was from the University of a place known as Berlin in Germany. All right. He is known for his books, The Theory of Practice of History. History को practice कैसे करते हैं यानी अप्लाई कैसे करते हैं, उसने इसके बारे में लिखा है। And The Secret of World History, दुनिया के हिस्ट्री के बारे में सीक्रेट्स क्या है अलग अलग, he wrote a book on that. So he was of the opinion, यानी उसकी ये सोच थी that history should be studied critically, यानी हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाना चाहिए कि बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, and placed a lot of importance on studying original documents. तो लियोपोल्ड वैन रैंक ने क्या किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी सबूत पे बहुत जोर डाला। जैसे रेने डेकार्ट ने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सबूत पे जोर दिया, वैसे ही लियोपोल्ड वैन रैंक ने भी जोर दिया इस चीज पर, और इतना सारा जोर दिया कि he criticized the idea of imaginative narration of history. हिस्ट्री कोई इमेजिनेशन की चीज नहीं है, तो लियोपोल्ड वैन रैंक इसे बहुत मानते थे कि हिस्ट्री इमेजिनेशन से बनाया नहीं जा सकता। हम अचानक से ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में 10 तरह के भगवान रहते थे 18वीं सदी में, ऐसा कोई इमेजिनेशन करके किसी को भी बोल सकता है, पर इज दैट काउंटेड एज हिस्ट्री? नो। सो लियोपोल्ड वैन रैंक मेड दिस इंपॉर्टेंट चेंज की कोई भी हिस्ट्री अपने इमेजिनेशन से नहीं बना के बोल सकता है, उसको सबूत देना ही पड़ेगा, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या कोई असली सबूत दिखाना ही पड़ेगा, ऑलराइट। एंड दैट इज ऑल अबाउट लियोपोल्ड वैन रैंक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑलराइट, आवर फाइनल थिंकर फॉर टुडे इज कार्ल मार्क्स. Karl Marx was born in 1818 and died in 1883.
Now, who is Karl Marx? Karl Marx was also a German philosopher. So this is a third German philosopher who spoke about how economics and politics shape history. Economics and politics ने history को कैसे shape किया, यानी economics यानी trading, buying, selling, money, and politics यानी जो भी rule करते थे, जो भी governments होते थे, उन्होंने history को कैसे shape किया. All right. Now, he is known for his books, The Communist Manifesto and Das Capital. Communist Manifesto is basically talking about the communist style of government, yani the political, about the politics of a communist country. And Das Capital. Das Capital is talking about economics and how capital, yani money, and economics shapes history. Okay? Now, he felt that human relationships depended on their needs and the ownership of the means of production. तो उसके ख्याल में क्या था कि हिस्ट्री जो है वो किससे बनते थे, ह्यूमन रिलेशनशिप से. ऑलराइट. एंड ह्यूमन रिलेशनशिप यानी जो हम कनेक्शन बनाते हैं एक दूसरे से, जो हम क्या कहते हैं रिश्ते रखते हैं एक दूसरे से, वो किन दो चीजों पे डिपेंड करती है. वो डिपेंड ऑन देयर नीड्स यानी एक दूसरे की क्या जरूरत है हमें, एंड द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ओनरशिप यानी जो किसी चीज को ओन करता है या जो किसी चीज के ऊपर हुकूमत रखता है. राइट. ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास जो मतलब जो जरूरतें होती है उसको कैसे बनाएंगे, वो इन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल नीड्स क्या हो सकते हैं. ह्यूमन नीड्स है फूड. तो लोग एक दूसरे के ऊपर रिश्ते कैसे बनाते थे, इस नीड के ऊपर, इस फूड के नीड के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया नीड्स अनियंस, लेकिन इंडिया के पास अनियंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास अनियंस है. सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशनशिप किस पे बन सकता है, ऑन द नीड फॉर फूड. राइट. तो वो एक एग्जाम्पल हुआ. ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है. अभी पाकिस्तान के पास अनियन ग्रो करने के फार्म्स है, तो इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, क्योंकि इंडिया को पता है कि उसके पास अनियन ग्रो करने के लिए फार्म्स है, वो अनियन का प्रोडक्शन करने का जरिया है. तो इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिससे उनका हिस्ट्री बन जाता है. ऑलराइट. नाउ he further says the inequality between those two led to society being divided into classes. अभी नीड्स और किसी भी चीज पर उस नीड्स को बनाने वाली चीजों पर हुकूमत रखना, इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू क्लासेस. इट लेड टू सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू क्लासेस. क्लासेस क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना जैसे ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास. ऑलराइट. तो सोसाइटी यूज्ड टू बी डिवाइडेड बिटवीन द रिच, मिडिल क्लास एंड द पुअर. हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं. ऑलराइट. दैट स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर. तो इन जरूरतों की वजह से या इन जरियों की वजह से जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है, उसके वजह से क्या होता है, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस. फॉर एग्जांपल दोज हु वर वेरी रिच, यानी किंग्स, क्वींस, जो राजा महाराजा रानियां होती थी, उनके पास बहुत सारा पैसा होता था, खाना होता था, तो उनको कोई जरूरत होती नहीं थी, उनको उनके नीड्स बहुत कम थे. लेकिन उनके नीचे रहने वाले जितने भी पुअर लोग थे जो उनके सर्वेंट्स थे, तो दे वुड नीड फूड, दे वुड नीड मनी. अभी इन जरूरतों के अनइक्वल होने की वजह से किसी को एक को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारा है, वर्सेस किसी भी एक को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके पास बहुत कम है. तो इन दोनों के अनइक्वल यानी बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह से उन दोनों के बीच में स्ट्रगल होता था, यानी लड़ाई झगड़े होते थे. एंड ह्यूमन हिस्ट्री इज अबाउट दैट क्लास स्ट्रगल. तो इन क्लासेस के बीच में यानी रिच एंड पुअर के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे, स्ट्रगल होते थे, हिस्ट्री उसके ऊपर आधारित है. वन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मेक एन इजी एग्जाम्पल अगेन. Britishers had a lot of power, they had a lot of money, they had a lot of weapons. लेकिन इंडियंस के पास ये पावर, ये वेपन्स, ये मनी नहीं था पहले. अभी इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हम पर हमला किया और फिर वो लोग आराम से रहने लग गए और हमारी जरूरतें बढ़ने लग गई, उनकी जरूरतें कम होने लग गई. सो we were divided into classes. Britishers were known to be very rich and very powerful. Indians were known to be very poor, very weak.
अभी इन दोनों क्लासेस के बीच में जब स्ट्रगल शुरू हुआ, उसकी वजह से हिस्ट्री बन गया. हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल. एंड दैट्स वाई कार्ल मार्क्स बिलीव कि जो भी हिस्ट्री में लिखा जाता है वो दो लोगों के बीच में झगड़ा जो होता है, दो क्लासेस के बीच में जो स्ट्रगल होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट. ऑलराइट, नाउ वी हैव finished with all the thinkers for today. We are now at the end of our lecture. I would like to end this lecture by sharing a thought said by Rene Descartes. I think, therefore I am. यानी कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ. So I want you all to think about this line and apply it in your lives कि हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए. जिस दिन हमने सोचना बंद किया उस दिन हमारा मतलब मनुष्य यानी ह्यूमन रहना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि who doesn't think? Animals don't think for themselves. But that is the difference between us and animals. हम में और जानवर में ये फर्क है कि animals सोचते नहीं है ज्यादा, लेकिन humans think. And that's what Rene Descartes is trying to say कि I think, therefore I am. I hope all of you like this lecture. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मुश्किल लगे, so please reach out to me. You can call me or text me on WhatsApp. And I hope all of you will answer the questions given at the end of the message posted on the group. And I hope all of you have written down notes that were shown on the screen as well. अगर तुमने notes नहीं लिखे, go back to the video and write the notes. Thank you for coming to today's lecture, and I hope you have a nice day. Goodbye.